वेल कल की क्लास में yesterday we did implemented some codes on BERT and we also checked the outputs for them. We gave a text as an input, asked the tokenizer to tokenize it. Then we gave the output to the BERT model and then we asked to produce the output. We have seen that there were a huge number of vector representations. We were seeing some input ID, we were seeing attention mask, what they are. I want to have some discussion related to it. Okay, so here I have prepared a notebook for you. The outputs which we got. Okay, there was one sentence: Bird's attention mechanism is fascinating. I like to study it. This you call as word piece tokens. I have explained multiple times. Okay, and every token is assigned and an ID that is called as input ID. That means a integer representation. To convert it into vocab, so many times I have explained this thing. Okay, so there will be a representation in tensor format like this. So as many as number of tokens you are having, it will be assigned an ID, a integer value. Okay, so you can see here, these are the integer values to every token. Here you have special tokens also. Yesterday I did talked about the same. That means you are having 14 tokens. So it was showing the ID for 16. One is for CLS and one is for SCP. Okay. So CLS starting of the sequence classification, and this is for separator end of the sequence. So 102 and 101. Rest are the IDs for what is present in your text as tokens. There could be a question, sir, the ID remains the same. Well, I can't say. Maybe if you use this word in another sentence, ID may differ. Okay, the only thing which I can say you here is I am assigning a integer notation to it. Okay, fine. And then what happened after input ID? We are having token type ID. That means okay, you have seen tensor 0 0 0 0 0 all zeros. Okay, so token type ID means that all tokens belong to the first sentence. That is what we are assuming right now. That we are having a sentence and all the tokens which are created, they belong to the same sentence. So that is sentence number one. It has been represented by all the zeros. So zeros for first sentence, one for second sentence, and so on. So it's like no sentence level ID assignment. Okay, because it's not a recurrent network, but transformer is not recurrent. Transformer do work in terms of word embedding, positional embedding, sentence level embedding. So we can say like, okay, this is sentence level embedding. First sentence, all zero. Though we were having, okay, one sentence only, I guess. Now, we are having full stop also present here.
but the CLS is put here at the end. Okay, the CP is put here at the end, CLS from the starting. Okay, so it's considering everything it as one sentence, the token which has been created. Okay, so accordingly, all zeros are being assigned. Then we were having attention mask also, all ones. That means it represents if all are one, the token should be considered in the attention mechanism. That means what token should be considered in attention, what not to be considered in the attention. This is also been present in the BERT. Have you seen this thing? In when we were learning the original architecture, whether it is mentioned that which word should be considered in attention, which word not should be considered in the attention, we were not being mentioned there. But as we did output of the BERT and the tokenization, then these things are also printed. That is why he said there are many things which are hidden and we have to explore. Okay, so attention mask. It means all ones means every token should be considered in attention. Okay, and then we were having I as we seen we printed the output. There were hidden state. Okay, last hidden state. Okay, there were pooler state also. Pooler output was there. I was just seeing. Okay, it's like all the vector representations, all the embeddings were there, and these states were mentioned internally. There is attention mechanism also. Okay, so all number will be there. We have seen previously in the last session. So I tried to find that what is this last hidden state, because it's an encoder representation. There will be a neural network inside, and there will be hidden layers also. Okay, so what is all about? So it's a tensor last. It's which contains the hidden states of the last layer of the BERT model, last layer of the BERT. That means it is having the batch size, sequence length, and the hidden size. Batch size is the number of sequences processed parallelly. Sequence length is the number of tokens, and hidden size is the dimensionality 768 for the BERT. So that is why now such kind of values we are seeing long, very long sequences. Okay, that's the example output. It comprises of these three things: batch size, sequence length, and the hidden size. Number of sequences, number of tokens, and the hidden size. That is 768. So something like this is shown in the hidden state. We were having pooler state also, pooler output. It represents the output of the pooled representation of the CLS token, which is typically used for classification. So it's again its representation is batch size and the hidden size. Hidden size again 768. The output is obtained by applying linear activation function by 10h activation function. Linear layer by 10h. Linear means wx plus b. This you have to give into 10h activation function to find the last hidden state for classification. Okay, so there is polar output also. Okay, we can see. So hidden states provide detailed context embeddings for each token in the input sequence, and polar state talks about task for classification. Okay, so let me share my entire screen now, and I do talk more on these. Some idea I want to give you. Okay, fine. So, as we start the things like giving text as an input, and then
tokens are created, and the tokens are word peace tokens. Okay. Now the thing is, for example, I am your AI teacher. So these are the tokens. I am having one, two, three, four, five. Five tokens. So the length, the vector representation, the vector representation of each token is a long sequence. For example, I am having these five now. So let us suppose the vector representation for each and every token I, for example, I. It has been written as 0.2, 0.3, 0.4, something like that. Let us suppose up to 10. Similarly, am, all these continuous value up to 10. Then your, all these continuous value up to 10. Okay, that means 10 values, 10 continuous value will be filled. AI, okay, then 10 continuous value will be filled. Then teacher, again the 10 continuous value will be filled. This is how the vector representations are made. Okay, and then including, okay, it's for the words. We have to include CLS also and separator also. CLS and the separator. These two are also included, CLS and the separator. And then we have to give this to the encoder. An encoder, giving to the encoder, it's told that we have to make a tensor representation for it. Tensor. And tensor representation, it is saying that 768 is the input size. So you can see that it's converting all into the tensor and a long range, long format, which is having, for example, one we studied here, hidden state. Hidden state is having what? Three things. Three things hidden state is having. And what three things it is having? You can check it out here in the code also. Okay. Hidden state it is having batch size, okay, batch size, sequence length, and hidden size. Sequence length I haven't given. Okay, what is the birth sequence length? That is the number of tokens. Okay, so it will be a number of tokens in the input sequence. Okay, so that is 16. We can say for this particular sentence it is 16. Sequence length is 16. Okay, including CLS and the separator. Batch size, let us suppose 16. Number of sequences. How many total number of sequences are there? Okay, we are having only one sequence. So 1, batch size is 1. Sequence length is 16. 1 comma 16 comma hidden size. Hidden size is 768. That is the dimension. Okay, fine. So this is the last hidden state value. So all these things are like showing, these vector representations are showing this thing only. Similarly, we are having this vector representation for pooler, batch size and the hidden size. Again, 768. 768 will be the number of neurons. Okay, it's a neural network now. So it will be number of neurons. So batch size is 1 and these are the number of neurons. Okay, so you are inputting tokens here now. You are inputting tokens. Tokens are in the form of a vector. Okay, so you are having vector and you are making tensor of it. That means till here to here. Every, this is my first word, this is my second word, this is my third word,
fourth word and the fifth word. This will be given to a neural network of 768 neurons for training purpose. Okay. Though my weights BERT is already now, I'm not performing fine tuning. I'm just giving the input. Its weights are they are already trained weights. I'm going to get some output from it, whatever we desired. And obviously, you're seeing such kind of representation multiple times because of the reason it's told that you are having 12 encoder and 12 attention mechanism. Okay, so for every encoder, it is producing the output. There are many things. I want to take a practical session on attention mechanism. Attention mechanism. We are going to take a session, practical session, coding. We want to code for it. अटेंशन मैकेनिज्म अभी सिर्फ इतना ही करना है अपन को अटेंशन मैकेनिज्म का कोडिंग करेंगे ओके देखना चाहते हैं कि क्या वर्किंग हो रहा है व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर क्योंकि जो आपने पढ़ रखा है अब तो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर इज प्रिटी मच क्लियर टू यू देयर इज़ नो इशू इन दैट ओके यू वेरी वेल नो कि एनकोडर है डिकोडर है एंड इनपुट दिया एंड आउटपुट वी आर गेटिंग और इनके अटेंशन मैकेनिज्म्स आप ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हो प्रीवियस सेशंस के अंदर बट थोड़ा सा और इन डेप्थ आई वांट टू गो ठीक है इसका कोड प्रोस्पेक्टिव से मुझे बताना है कि एक सेंटेंस लेंगे हम और जो वट एवर बी द थिंग्स विच यू आर सीइंग राइट नाउ ये भी लगा तो और डेप्थ में इंटरनल क्या प्रोसेसिंग होती है दैट्स व्हाट वी वांट टू चेक ये देखना चाहेंगे ठीक है ऑल राइट एंड देन फिर क्या हुआ चलिए पुलर आउटपुट भी निकाल दिया ये कर लिया हमने एंड तो यहाँ है हिडन स्टेट बोल दिया इट्स अ टेंसर ऑफ द हिडन स्टेट्स ऑफ द लास्ट लेयर एंड इट इज़ द आउटपुट ऑफ द पूलिंग लेयर तो यहाँ पूलिंग लेयर भी होती है और पूलिंग लेयर यू हैव सीन इन कंप्यूटर विजन अब यहाँ कौन बोल रहा है आपने देखा है कि पूलिंग लेयर एनएलपी के अंदर भी लग रहा है in natural language processing have you seen the pooling layer we have seen in computer vision there we do have cnn and pooling ठीक है ये cnn था फिर ये pooling था फिर cnn था एंड देन फिर pooling था तो pooling what the task pooling do pooling तो dimensionality reduction होता है dimensionality reduction ओके और cnn फीचर एक्सट्रैक्शन होता है ओके ये होता है फीचर एक्सट्रैक्शन और ये होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन तो कहीं आप ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर रहे हो पूलिंग में नहीं मीनिंग तो ये लग रहा है वो कह रहे हैं पूलिंग से हम क्लासिफिकेशन टास्क के लिए वी आर यूजिंग दिस फॉर क्लासिफिकेशन टास्क पूलिंग बोल रहा है वो देखिए it is usually the output of pooling layer applied to the last hidden state used for classification. So the pooling operation, it's a linear transformation with 10h activation function. Condenses the sequence in a fixed condense कर रहा है ना देखो 10h activation function से और 10h क्या होता है -1 to +1 होता है What is 10h? तो आपने ये जो न्यूरल नेटवर्क में y इक्वल टू wx प्लस बी करा उसको आपने यू हैव गिवन टू 10h एक्टिवेशन फंक्शन और 10h में देने के बाद वो -1 टू +1 के अंदर कन्वर्ट हो गया ओके दैट मीन्स यू हैव कंडेंस्ड इनटू दिस पर्टिकुलर range of the values and then you are using it for classification ओके ये बात है तो एक्टिवेशन फंक्शंस का भी बड़ा देयर इज अ मेजर रोल ऑफ द एक्टिवेशन फंक्शंस वी आर हैविंग नाउ सो मेनी एक्टिवेशन फंक्शंस ठीक है तो वो कह रहा है इसको कंडेंस करके क्लासिफिकेशन में लगा रहे हैं कंडेंस बोले तो मुझे लग रहा है ये नॉर्मलाइज कर रहा है नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो पूलिंग का ये काम यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है बाकी तो न्यूरल नेटवर्क है ठीक है दैट मीन्स वो जो लेयर्स हिडन स्टेट्स हैं फाइन सो दैट्स अ न्यूरल नेटवर्क वेयर द कंप्यूटेशन 768 न्यूरॉन्स हैं और बहुत सारी लेयर्स होंगी वी आर हैविंग 12 एनकोडर एंड एवरी एनकोडर इज मेड विद द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क okay so there will be a neural network in that okay तो भाई ऐसा है
ये काम हो रहा है और वो इतना बड़ा जो आपको आउटपुट दिख रहा है वो इसी कारण दिख रहा है। और ये जो टेंसर रिप्रेजेंटेशन आया है, ओके, वी गॉट टू नो सम थिंग्स अबाउट इट, बट वी वांट टू एक्सप्लोर मोर ऑन दिस। कि सर एक आप सेंटेंस ले लीजिएगा, पूरा अटेंशन मैकेनिज्म विद आर्किटेक्चर बताइएगा कि अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा सा और हम समझना चाहेंगे। ठीक है, बेसिक तो अब हम समझ गए हैं, वी कैन ड्रॉ, वी कैन टीच एनीवन। बट जब हम यहाँ पर वी आर सीइंग द आउटपुट, तो सर इतना लेंदी आउटपुट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल कंप्यूटेशंस आर गोइंग ऑन। तो उसके बारे में भी यदि आप थोड़ा सा बता दें तो बढ़िया रहेगा। इसके लिए मैं अलग से सेशन लूँगा और आई विल बी टीचिंग दैट। ठीक है, ऑल राइट। देन वी वर ऑलरेडी डूइंग द कोड। तो आपके कोड के अंदर, ठीक है, बट मॉडल, बट सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, बट फॉर मास्क एलएम, ये कोड्स हमने प्रीवियस क्लास में करे। ठीक है, ये देखिए, ये टेंसर आया, ये क्या है ये जो टेंसर आया व्हाट इट इज। तो आप ये रिप्रेजेंटेशन देखें, इट्स अ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। सो एवरी टोकन का ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, इसमें इंटरनल यू आर हैविंग अटेंशन वैल्यूज ऑल्सो, वो तो एक एक करके आउटपुट देते चले जा रहा है। ठीक है, ये आपने वर्ड एम्बेडिंग प्रिंट करी है ना, वर्ड एम्बेडिंग्स। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही तो एम्बेडिंग है। एंड वर्ड एम्बेडिंग के ऊपर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट हियर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एवरी कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, ऐसा इट्स नॉट न्यू टू यू, आप सब कुछ बता सकते हो, दैट्स व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार ना, यू कैन टेल एवरीथिंग। यदि आप एक एक लेक्चर अटेंड कर गए हो तो पूरी स्टेप आपको क्लियर है। ठीक है, तो एम्बेडिंग्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस हैं, कंटिन्यूस इन नेचर है, सेम वर्ड्स का सिमिलर एम्बेडिंग्स वी कैन हैव सो दैट आवर वोकैब साइज शुड नॉट बी मोर, ताकि हम कंटेक्स्ट मैच कर सकें। ठीक है, और ऐसा भी है, ऐसा भी बोला गया कि बाई डायरेक्शनल है ना ये, बर्ट इज बाई डायरेक्शनल। तो बाई डायरेक्शनल में हम, इफ एनी ऑफ द टू वर्ड्स विच आर यूज्ड विच आर सेम, बट ये डिफरेंट कंटेक्स्ट का हो सकता है, दिस ऑफ डिफरेंट कंटेक्स्ट हो सकता है। दैट मीन्स वो आप बैंक वाला बात करो, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है और एक रिवर बैंक है। ओके, तो बाई डायरेक्शनल प्रोसेसिंग में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये बैंक का मेरे करस्पॉन्डिंग वर्ड्स के साथ ध्यान में रखते हुए, बाय कीपिंग इन कंसिडरेशन ऑफ द नियर बाय वर्ड्स, ओके, इसका वेक्टर क्या होगा, व्हाट शुड बी इट्स एम्बेडिंग। ओके, वो क्या होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली माई मॉडल विल यूज इट। वैसे अभी हमने कहा वर्ड एम्बेडिंग्स में, आई ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू, फॉर एग्जाम्पल यू रिमेंबर किंग एंड क्वीन, दे बोथ बिलोंग टू रॉयल फैमिली। ओके, तो इनका जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इट कैन बी मेड नियर बाय और इट कैन बी मेड कॉमन, हो सकता है इनकी एम्बेडिंग सेम हो सकती है क्योंकि दोनों रॉयल फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। अब चलो ठीक है, लेकिन यदि, ओके, इफ यू आर हैविंग अ सेम वर्ड, if I am having a same word which is used twice in a sentence and it is having a different meaning, तो in that particular case how my model will recognize it, कैसे करेगा वो। ओके, तो ऐसे में ये भी उनके पास फैसिलिटी है कि एक वर्ड के डिफरेंट एम्बेडिंग्स हो सकते हैं। फॉर अ सिंगल वर्ड आई कैन हैव डिफरेंट एम्बेडिंग्स। अब वो डिपेंड कर रहा है कि उसके नियर बाय वर्ड्स के करस्पॉन्डिंग कौन सा एम्बेडिंग विल बी बेटर फॉर इट, ये डिसाइड किया जाएगा। वो कौन सा वेक्टर लगेगा उसके नियर बाय के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि एक वर्ड का एक एम्बेडिंग हुआ करता था, बट नाउ अब तो हम एडवांस हो गए हैं। ओके, सो वी डोंट हैव अ सिंगल एम्बेडिंग फॉर अ वर्ड, नो, वी आर हैविंग डिफरेंट एम्बेडिंग्स फॉर अ वर्ड। इट डिपेंड्स उसको किस कंटेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। ओके, फाइन, ये वाली बात है। चलिए, तो ऐसा है
ये BERT में we are we did use the BERT for this much task. आप फाइन ट्यून कर सकते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यू कैन यूज। अब जीपीटी तो टेक्स्ट जनरेशन के लिए है, T5 एंड बार्ड भी होता है। दीज मॉडल्स यूज एनकोडर एंड डिकोडर बोथ, लेकिन बर्ट आपका सिर्फ एनकोडर है, डिकोडर इज नॉट प्रेजेंट इन बर्ट, है ना, वो बाई डायरेक्शनल एनकोडर है। Okay, but we do have encoder decoder both, तो T5 and BART can use encoder decoder both। GPT decoder का यूज करता है फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ओके, बिकॉज उसका नाम जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म, वो प्री ट्रेंड है वो तो, ठीक है, और वो डिकोडर का यूज करेगा टू जनरेट द टेक्स्ट। ओके, वी डू हैव एडवांस टेक्निक्स in BERT also, like fine tuning, we can fine tune the weights of the BERT model। ठीक है, कर सकते हैं, करते हैं, कई प्रोजेक्ट्स अपन बनाते हैं उस पर। ओके, एंड आउट ऑफ द वोकेबलरी को भी हैंडल कर लेता है, बिकॉज देयर माइट बी सम वर्ड्स जो कि योर मॉडल इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Okay, though it is having a good vocabulary, already we have seen in our coding part, इसके पास अच्छा खासा vocab है, 30,000 या 35,000 तक का vocab size है, it can understand। So we do divide the text into tokens, word piece tokens, and every token is having its embedding available। लेकिन यदि कोई टोकन ऐसा है जो उसको समझ में नहीं आया, वर्ड पीस में कर तो दिया बट इट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो उसको वो क्या करेगा, वो आउट ऑफ द वोकैब मार्क कर देगा, OOV ये मार्क कर देगा कि भाई मेरे समझ में तो नहीं आया है कि आपने लिखा क्या है। तो OOV को क्या होगा, UNK अननोन नाम का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जैसे कि आपके पास CLS है एंड आपके पास SEP है, वैसे ही आपके पास अननोन नाम का भी टोकन है। यदि कोई वर्ड उसको नहीं समझ में आया, उसके वोकैब में इट्स नॉट बीन प्रेजेंट, देन उसको अननोन मार्क कर देगा वो। ठीक है, उसको हम क्या, इस प्रोसेस को कहते हैं अपन आउट ऑफ द वोकैब। ओके, ठीक, वो यही बता रहा है यहाँ पर। ओके, सो OOV यू कैन स्प्लिट देम इनटू सब वर्ड्स, ये तो वर्ड पीस होता ही है, और रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो OOV, तो उसके लिए अपन ने स्पेशल टोकन अननोन रखा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, डोमेन अडेप्टेशन विद BERT, मेकिंग BERT योर्स, तो आप BERT इज अ पावरफुल बट नॉट ऑप्शनली यूज इन एवरी डोमेन। ये हर किसी का तो ऑप्शन नहीं है, वी कांट यूज BERT एवरीवेयर, डोमेन स्पेसिफिक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड सम टास्क वर मेंशन फॉर द BERT अबाउट, लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस, NER, क्वेश्चन आंसरिंग, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ पर कुछ वर्सेटाइल एप्लीकेशंस हैं BERT के, यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अ, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज योर नॉलेज डिस्टिलेशन फ्रॉम BERT। ये क्या कहना चाह रहा है, नॉलेज डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ स्मॉलर मॉडल student to mimic the behavior of a larger pre-trained model teacher like BERT। ओके, दैट मीन्स आप डिस्टिल कर लो नॉलेज को और छांट लो, फिल्टर कर लो। सी क्या है कि टीचर टीचर डू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, टीचर हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, टीचर गॉट एन एक्सपीरियंस, लेकिन अब हमने एक काम करा, हमने कहा कि हम इसका स्मॉल वर्जन बनाना चाह रहे हैं, स्मॉल वर्जन। ओके, सो आई वॉन्ट टू फिल्टर द नॉलेज। आपको जितना आता है उतना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आपका कुछ खास नॉलेज हम रखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू यूज इट, तो उसको हम कहते हैं नॉलेज डिस्टिलेशन। ओके, सो फ्रॉम लार्ज मॉडल टू स्मॉल मॉडल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कैन वी क्रिएट अ मिमिक ऑफ इट। Okay, so this compact model not only learn just teacher prediction but also got a confidence in the reasoning too। देखेंगे अपन अभी अपने BERT के एडवांस्ड वर्जन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप नॉलेज डिस्टिलेशन कर सकते हो, वी कैन ट्रेन अ स्मॉल मॉडल। ओके, अच्छा कैसा है ये, देखते हैं यहाँ क्या बताना चाह रहा है।
अब यहाँ पर इट गेव अ कोड लाइक यू आर टेकिंग बर्ट फॉर क्लासिफिकेशन, टोकनाइजर वी ऑलवेज टेक, ये तो लेते ही हैं। तो यू आर हैविंग अ टेक्स्ट एज एन इनपुट, एडवांस फाइन ट्यूनिंग विद वो बर्ट। उसके बाद हमने इसके टोकन कर दिए, पैडिंग टू ट्रू, ट्रंकेशन ट्रू। आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पैडिंग एंड ट्रंकेशन ऑल्सो, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं पैडिंग और ट्रंकेशन क्या होता है। अच्छा, इट्स नॉट न्यू, हमने देखा है एनएलपी प्रोजेक्ट्स में, वी डिड परफॉर्म दिस पैडिंग ऑल्सो, कंप्यूटर विजन में भी करा है, पैडिंग एंड ट्रंकेशन करते हैं। वो इसलिए है बिकॉज यू वांट टू मेक द लेंथ ऑफ सीक्वेंस कंप्लीट, तभी आप पैडिंग करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा था कि वी आर हैविंग सेंटेंसेस। Okay, for example, sentence number one is having 5 words, sentence number two is having 10 words, sentence number three is having 15 words. So I already taught you LSTM and by LSTM के बारे में I have taught. तो highest number वाला sentence जो है 15 है, एंड इफ आई नीड टू इंटरप्रेट दम, मुझे करना है तो जो 5 वाला है ना, इसको 15 तक करना पड़ेगा। आई नीड टू कन्वर्ट, ओके वेक्टर तो उसका बनेगा ही बनेगा, ओके लेकिन द वेक्टर विल बी ऑफ 5, बट आई मुझे मैक्स के बराबर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल परफॉर्म पैडिंग। हाँ, आप प्री पैडिंग यू कैन डू, पोस्ट पैडिंग ऑल्सो यू कैन डू, इट्स अप टू यू। तो यदि हम प्री पैडिंग करते हैं तो 10 जीरो जो हैं वो आगे लग जाएंगे, और आखिरी में ये जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं 5, वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो दिस विल ऑल्सो बिकम ऑफ लेंथ 15। वो तो मुझे इक्वल लेंथ का बनाना ही पड़ता है, ये मैंडेटरी है। ओके, वेरिएबल लेंथ हो कोई इशू नहीं है, मैं उनको सबको सेटल कर दूंगा पैडिंग करके। आप प्री एंड पोस्ट यू कैन डू द पैडिंग कर सकते हैं, आपको इशू नहीं है। ठीक है, एंड ट्रंकेशन में मुझे साइज रिड्यूस करना पड़ता है। ट्रंकेट मीन्स, ट्रंकेट का मतलब यही होता है कि रिड्यूस करो आप साइज। ओके, तो भाई कैसे रिड्यूस करना है, लेट मी अगेन शो यू माय कोड। ठीक है, बता रहे हैं। तो पैडिंग में आप टू मेक ऑल द सीक्वेंसेस ऑफ सेम लेंथ, अभी जस्ट मैंने बता दिया, वी आर मेकिंग ऑल द सीक्वेंसेस ऑफ सेम लेंथ। ठीक है, तो आपको ये पैड जो है टोकन, दैट यू हैव टू यूज, मैंने 0 लगा दिया वहां पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द लेंथ, द मैक्सिमम लेंथ इज 10, बट योर tokens are 4, so here post padding has been done. You can see that 6 more are added at the end, तो उसको 10 का कर दिया, तो ये पैडिंग होती है। ट्रंकेशन का मतलब होता है टू शॉर्टर सीक्वेंसेस दैट आर लॉन्गर देन द स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ। अब ये क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टू शॉर्टन द सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को कम करना, शॉर्ट करना। तो मैक्सिमम लेंथ आपने डिफाइन करी है 5, आप ये कह रहे हो कि भाई मेरी सीक्वेंस की लेंथ तो 5 होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। तो ट्रंकेशन करना पड़ेगा फिर उस केस में, यू हैव टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग a sequence whose tokens are, this is a very long sentence that needs truncation, it is having 9 tokens, and let us suppose आपने सेट कर रखी है कि 5 की लेंथ होना चाहिए सीक्वेंस की। ओके, तो ट्रंकेट करेगा, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी लॉन्ग, बस इतना, बाकी ट्रंकेट हो गया। ओके, सेंटेंस दैट नीड्स ट्रंकेशन, ये टोकन निपटा दिया उसने। ठीक है, इट्स ओवर। तो लैंग्वेज मॉडल्स लाइक बर्ड यूजेस प्री ट्रेन्ड स्पेसिफिक मैक्सिमम लेंथ, यानी 512 टोकन्स ले सकता है। ओके, तो वट एवर बी द टेक्स्ट यू आर गिविंग, उसको मैक्सिमम 512 टोकन्स इट कैन क्रिएट। ओके, इनपुट्स लॉन्गर देन दिस लेंथ मे बी ट्रंकेटेड, और यदि आपने होशियारी करी
आपने पूरा की पूरा चैप्टर कॉपी करके पेस्ट करके बर्ट को दे दिया, तो भाई वो तो सिर्फ 512 इट विल कंसिडर, और बाकी जो रेस्ट जो भी टोकन बन रहे होंगे वो सबको निपटा देगा। लिमिट होती है टोकन की। चैट जीपीटी डू ऑल्सो हैव द टोकन लिमिट। अब यहाँ पर 512 है, मे बी सीक्वेंस लेंथ या टोकन प्रोसेसिंग लेंथ बढ़ गया हो, 1024 हो गया हो, 2048 हो गया हो, एंड 4096 हो गया हो। और यही एक इशू है हमारे एल एस टी एम, बाई एल एस टी एम, एक्सटेंडेड एल एस टी एम के अंदर भी सिक्वेंस लेंथ उनको बड़ी करनी है, और पूरी कोशिश करी है उन लोगों ने। एक्सएलएसटीएम गदर पेपर है वो, एक्सटेंडेड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। और व्हाट दे डिड इज कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम भी ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की तरह आर्किटेक्चर बना लें, बना भी दिया, दे डिड दैट, और हम इसको अब एलएलएम्स की जगह यूज करें। तो कॉम्प्लिकेशंस उनके साथ ये उन्होंने मेंशन करा है अपने ड्रॉबैक में कि सीक्वेंस लेंथ जो है अभी भी हमारे पास बढ़ा तो दी उन्होंने, बट चैलेंजिंग है। ठीक है, सीक्वेंस लेंथ मोर नहीं है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में, इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, यू परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, यू आर हैविंग एनकोडर, एनकोडर्स, ठीक है, एनकोडर्स हैं एंड डिकोडर्स हैं, एनकोडर्स डिकोडर, ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर हैविंग। आर्किटेक्चर ऐसा है, आपने तो एक कंपोनेंट ही देखा था सिंपल, बोल रहा था ना 12 एनकोडर, ठीक है, तो बर्ट में तो सिर्फ एनकोडर ही थे, तो 12 ही बोल दो, अभी 12 थे। ओके, अब इसके अंदर भी पैरेलल मैकेनिज्म है। ओके, यू आर हैविंग सो मेनी अटेंशन मैकेनिज्म्स, लेट अस सपोज 12 हैं, सब पैरेलली काम कर रहे हैं, इट इज मल्टी हेड। तो उन्होंने भी कोशिश करी कि हम भी कुछ ऐसा बना लें। तो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने एलएसटीएम में एक्स एलएसटीएम में दे डिड मेड एस एलएसटीएम एंड एम एलएसटीएम, दो बनाया उन्होंने, वन इज स्केलर, वन इज मेमोरी। स्केलर और मेमोरी, स्केलर को वैसे ऊपर रखा, मेमोरी को नीचे रखा। यहां जो मेमोरी आप देखते हैं एलएसटीएम में, ओके, वो वेक्टर में आती थी एलएसटीएम में, यहां ये मैट्रिक्स के फॉर्मेट में मेमोरी दे रहे हैं। पूरा गेम भाई मान के चलो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई में ये लीनियर अलजेब्रा का है, मैट्रिक्स, वेक्टर। अभी भी एक बात बताओ, ये तुम देख रहे हो ये आउटपुट, ये क्या समझ में आया, ये आउटपुट क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, क्या ये क्या बन रहा है, ये सीधी सी बात समझो भाई, वेक्टर और मैट्रिक्स के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। और कुछ है क्या, ये क्या बना ये, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। तो टेंसर मैट्रिक्स, अब वो टेंसर हायर ऑर्डर मैट्रिक्स इज अ टेंसर, तो टेंसर बना रहा है वो, इसके अलावा क्या है। ठीक है, तो भाई मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस तो आप मान के चलो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी आउटपुट्स हैं, अभी इंटरनल जो कैलकुलेशन हुआ है वो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बैकवर्ड बैकवर्ड प्रोपोगेशन, तो वो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। वेट एट इनिशियलाइजेशन, और जो होता है जब इसकी ट्रेनिंग होती है, फाइन ट्यूनिंग होती है, तो वेट एडजस्ट होते हैं, तो बैक प्रोपोगेशन हुआ, तो वहाँ कैलकुलस है, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं। तो जो आपको पढ़ाया जाता है ना मशीन लर्निंग में सबसे पहले, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, इनके अलावा तो कुछ है नहीं अपने पास। दैट्स व्हाट इज बीन अप्लाइड हियर। ओके, तो इन्होंने क्या कर रखा है मालूम, पैरेलली ये ब्लॉक बनाए, ये एम एल एस टी एम और एस एल एस टी एम के, ये एम 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 एस एस एस, ये काम करने के लिए ताकि वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकें, इसलिए उन्होंने पूरे ब्लॉक बना रखे हैं उस पेपर में, यदि हम ध्यान ध्यान से समझे तो। ठीक है, वो अचीव यही करना चाह रहे हैं कि यार हम कैसे ना कैसे करके एलएलएम्स को कैसे क्या टक्कर दे दें। उनके कुछ ड्रॉबैक हैं, जिसमें सीक्वेंस लेंथ एक ड्रॉबैक है, कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली है ही है, क्योंकि है वो रिकरेंट का एडवांस्ड वर्जन है, ये कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी। ओके, एनकोडर डिकोडर में वाली बात नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी, तो इतना नहीं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, अटेंशन मैकेनिज्म यहाँ भी यूज़ किया गया है, वो भी अच्छा खासा है। क्यू के वी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, क्यू के वी, दैट्स अटेंशन मैकेनिज्म यूज्ड हियर।
और अभी तो कल मैं पेपर अगेन देख रहा था, शेयर भी करा आज मैंने, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आप यदि चेकआउट करोगे, यू विल सी डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर रिसर्च पेपर। और फिर मैं बोलूंगा, यदि आप पेपर के ऑथर्स का नाम देखोगे, पता नहीं, मैं दिखाऊंगा, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू। ओके, आई हैव डन द चैंग और डाउनलोड्स जैंग फॉर है इट। सर। हाँ बोलिए। चैंग और जैंग है क्या? तो होना ही है, इसके अलावा है नहीं, और कौन होगा? ठीक है, कौन पेपर बना रहा है? हु इज डूइंग द पब्लिकेशंस? यही लोग वही तो वही। कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और ये देख लीजिए आप। ओके, सो हियर इट इज। अब नाम पढ़ लो आप, कौन है ये? ठीक है, ये है टेंजाई यी ली डोंग यूजिंग जिया। ठीक है, अब सारी तो ये कौन है ये? ठीक है, इट्स क्लियर, ऑल आर चाइनीज। ये देख लो। ओके, एंड इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एंड शिंगुआ यूनिवर्सिटी, डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, इन्होंने भी खेल क्या खेला होगा? अटेंशन वाले ही। ठीक है, डिफरेंशियल में ये देखो, शॉर्टमैक्स अटेंशन मैप्स, वी आर हैविंग डिफरेंस बिटवीन टू शॉर्टमैक्स अटेंशन मैप्स, द सब्ट्रैक्शन कैंसल नॉइस, promoting the emergence of sparse attention patterns. The experimental results on language modeling show differential transformer outperforms transformer in various tasks. ठीक है, आप देख लो, ये पूरी मैथ्स है। ये देखो, लगा ना, अटेंशन में ही आजकल, अटेंशन में ही बहुत कुछ, ये आपने पढ़ रखा है शॉर्ट मैक्स, क्यू इंटू के तो करते ही हो, और उसको डिवाइड करते हो ना डी से, स्केलिंग प्रोसेस करते हो, फिर शॉर्ट मैक्स में देते हो, जो रिजल्ट आता है उसको वी से मल्टीप्लाई करते हो। ये भाई उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दे रखी है उन्होंने कि हम डिफरेंशिएट कर दें। अब कैसी, ये देखो, ठीक है, ये उनकी एल्गोरिथम है फॉर अटेंशन, चेंज करा है उन्होंने। ठीक, अब पेपर पढ़िए तो सब समझ में आ जाएगा क्या काम कर रहा है वो। एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ कुछ मेंशन कर रखा है, ओवरऑल आर्किटेक्चर में उन्होंने ये कुछ जी एल यू, ठीक है, नॉट जी एल यू करके एक्टिवेशन फंक्शन लगा, स्विच एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। आजकल स्विच काफ़ी चल रहा है, अब चेंज करना पड़ेगा हमें। रेलू तो बहुत लगा लिया, स्विच चल रहा है, एक्सपोनेंशियल चल रहा है, चेंज करना पड़ेगा अभी हमें आगे। ठीक है, ये पूरा सेटअप करके उन्होंने पूरा ये रिजल्ट्स पब्लिश करें। ये कुछ कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ऐसा बना दिया। ठीक है, फुल ऑन अटेंशन टू आंसर, अटेंशन टू नॉइस। तो नॉइस भी होता है ना, डेटा में नॉइस भी होता है, नॉइस को कैंसिल करना है, तो ये उनकी रिसर्च नॉइस कैंसिलेशन पर है। ठीक है, ऑल राइट, देखिए आप। ओके, कंक्लूजन दी तो ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, 10 पेजेस का ही है। ठीक है, बाकी आप देखो इनके, पता नहीं, मुझे लगता है ये क्या चाइनीज दिन और रात बैठे रहते हैं क्या? ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी दिया, ये इक्वेशंस दी है बाद में पूरी। ठीक है, हाइपर पैरामीटर्स क्या सिलेक्ट करें हैं पूरा। ठीक है, और ग्रेडियंट फ्लो कैसे हो रहा है, ये पूरी इक्वेशंस है। अब बताइए, इतनी मैथ्स करना, देख रहे हो ये मैथ्स, समझ में आ गया? 19 पेजेस का पेपर है ये। ओके, अच्छा, ये क्यों दिखाया पेपर मैंने? जस्ट टू मोटिवेट यू। ओके, जस्ट टू मोटिवेट यू, लेट मी